Welcome all of you. Today we are performing the practical number 15 in which test a series circuit using series lamp and multimeter. That means we test the electrical equipment by using series test lamp method and multimeter method. In practical significance, testing of electrical circuit plays an important role in electrical and electronic components or equipment testing, in which such as relay, solenoid, coils, inductors, chokes, coils, loudspeaker, motor, generators, transformer and electricity meters etc. is necessary for fault finding and satisfactory performance of equipment, safety of operator, life of equipment etc. Here we can test the equipment, electrical equipment or electronic equipment by using series test lamp method and multimeter method, in which for test lamp method it is the experimental setup. That means in which way connect one lamp in series with the equipment and find the fault. We already know about the in series circuit voltage will be divided. That means suppose this is supply voltage V, then according to the series circuit the voltage drop across lamp is V1 considered and voltage drop across this equipment is V2 considered. Total V is equal to V1 plus V2. This supply is AC or DC supply. Okay, so that when we consider this lamp, according to the equipment behavior, that means the equipment will be closed condition or open circuit condition or short circuit condition, the lamp behavior will be changed. That means there are three types of conditions or faults in electrical or electronic equipment. These main faults are one short circuit, second OK condition, next good working condition or open circuit. There are mainly three faults in electrical installation. See, there is a three types of faults in mainly AC circuit. First fault is short circuit. Okay, in short circuit condition, when phase and neutral are touches without the load. See here, phase and neutral, this is phase and neutral wire is touching each other by short linked. म्हणजेच काय या ठिकाणी क्या होने वाला है, when phase wire is directly connected to the neutral wire without any type of load, that means this wire bypass this load, so that the current will be flows from phase to neutral directly, so that in short circuit condition R is equal to 0. Therefore current I is equal to V upon 0. That means current is infinity. In short circuit condition, current is maximum current flows through the supply system and supply system will be damages. In open circuit, this is open circuit. Okay, in open circuit current is interrupted by any reason. मतलब क्या होगा, वायर कट हो जाएगी या स्विच ओपन हो जाएगा या फ्यूज़ ट्रिप हो जाएगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, ओपन सर्किट होता है. ओपन सर्किट में क्या होता है, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है. सो करंट इज इक्वल टू 0. इस ओपन सर्किट में करंट 0 रहता है. और क्लोज सर्किट और गुड वर्किंग कंडीशन, इन दिस कंडीशन सर्किट विल बी क्लोज्ड एंड the output of equipment or any type of load gives required output. These three types of, there are mainly two types of faults, short circuit and open circuit, and this is the good working condition. There are three conditions in electrical equipments. Okay, in this practical we find out the short circuit and open circuit test on the equipment. मतलब इसमें हम क्या फाइंड आउट करने वाले, जो इक्विपमेंट है वो शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है या गुड वर्किंग कंडीशन में है, हमें चेक करना है, मतलब फॉल्ट फाइंड आउट करना है सर्किट का. ओके, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले मेथड में हम सीरीज टेस्ट लैम्प मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, इस टेस्ट लैम्प मेथड में क्या होता है, इक्विपमेंट को हम लैम्प के सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं. तो क्या होता है, जब ये दो सीरीज़ में आ जाएंगे, सपोज ये इक्विपमेंट एक गुड वर्किंग कंडीशन में है, तो क्या होगा, दो सीरीज़ में आ जाएगी और ये लैम्प का वोल्टेज कम हो जाएगा. लैम्प का वोल्टेज जब कम हो जाएगा तब क्या होगा, एक इक्विपमेंट गुड कंडीशन में है, ये हम इसे एज्यूम कर सकते हैं. ओके, ठीक है, जब लैम्प का ब्राइटनेस कम होगा, डिम लैम्प होगा ऐसे सीरीज़ कंडीशन में, तब सर्किट इज़ इन गुड वर्किंग कंडीशन. तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन
सर्किट इज़ शॉर्ट सर्किटेड, मतलब इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस इक्विपमेंट में। इस इक्विपमेंट में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट डायरेक्टली पास होगा, so that the voltage across this equipment will be zero because resistance is zero, therefore voltage is also zero, therefore whole voltage is appeared across this lamp and lamp brightness will be increases, so that in case of short circuit lamp brightness will be increases। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब का लैम्प ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब लैम्प गुड वर्किंग कंडीशन में होगा तब क्या होगा, लैम्प और इक्विपमेंट दोनों सीरीज में आ जाएंगे और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तब कंडीशन में क्या होगा, लैम्प का ब्राइटनेस कम हो जाएगा और लैम्प डिम होने लगेगा, ठीक है। लास्ट, जब सपोज ये ओपन सर्किट हो गया, सपोज यहाँ पे क्या होगा, इक्विपमेंट ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पे कोई भी एक जो इक्विपमेंट है यहाँ देख सकते हैं हम, स्विच ऑफ है और इक्विपमेंट का कोई वायर कट हो गया है, सपोज़ यहाँ के वायर कट हो गए तो क्या होगा, यहाँ से करंट आगे पास नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट आगे पास नहीं हो जाएगा तो लैम्प का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर लैम्प का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो लैम्प ब्राइटनेस या आउटपुट नहीं दिखाएगा, ओके। दैट मीन्स लैम्प इज़ नॉट ग्लो व्हेन सर्किट इज़ ओपन। ये हम देखेंगे सीरीज टेस्ट लैम्प मेथड में। और अगला मेथड है जो वो है बाय यूजिंग द मल्टीमीटर, ओके। दिस अवर मल्टीमीटर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब सर्किट गुड वर्किंग कंडीशन में होगा तो जो सर्किट का रेटेड रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो भी इक्विपमेंट होगा उसका रेटेड रेजिस्टेंस होगा, ये मल्टीमीटर दिखाएगा, ठीक है। जब इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट होगा तब शॉर्ट सर्किट के वक्त ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस वेरी लो दिखाएगा। हमने अभी देखा है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है, जो सर्किट्स का रेजिस्टेंस रहता है तो रेजिस्टेंस 0 तक रहता है, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस वेरी लो आएगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन। इक्विपमेंट में जब शॉर्ट सर्किट होगा तब इसका रेजिस्टेंस वेरी लो दिखाएगा या 0 दिखाएगा, ठीक है। अगर इक्विपमेंट ओपन हो गया, ठीक है, और इक्विपमेंट ओपन हो गया मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी लेवल को, मतलब वेरी हाई हो गया रेजिस्टेंस। सो दैट इन दिस सिचुएशन द मल्टीमीटर शोज द इनफाइनाइट और वेरी हाई रीडिंग व्हेन सर्किट इज ओपन। समझ गया आपको। देयर आर 3 मेथड्स। व्हेन सर्किट इज गुड वर्किंग कंडीशन देन रेजिस्टेंस इंडिकेटेड बाय द मीटर इज as per the rated value. When circuit is short circuited, the resistance indicated by the multimeter is very low or 0. When circuit is open condition, then multimeter indicate the reading high or infinite reading, okay, because in open circuit condition the resistance will be infinity. So see, we are seeing this practical at all these conditions, and in test lamp method we observe all these conditions. First we take the test lamp method in which we test one electrical iron and choke, okay. First we observed the electrical iron and after that we seen about the check, ओके। सीरीज टेस्ट लैम्प मेथड में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमने सप्लाई दिया, देखा आपने यहाँ से हमने इसे सप्लाई दिया, मतलब एक गया इक्विपमेंट को और एक गया लैम्प को। देखो यहाँ से हम एक वायर, ब्लैक कलर की वायर गए एक इक्विपमेंट को, मतलब चौक को देंगे, और सेकंड जो वायर गए इस सप्लाई का वो हम लैम्प को देंगे, एक वायर लैम्प को और एक वायर इक्विपमेंट को। नेक्स्ट टेस्ट लैम्प का सेकंड टर्मिनल वी कनेक्टेड टू द इक्विपमेंट। टेस्ट लैम्प का जो सेकंड टर्मिनल है वो हम इक्विपमेंट को कनेक्ट करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इस चौक को चेक कर देंगे, ठीक है। क्या अभी गुड वर्किंग कंडीशन का चौक है, ठीक है। तो हमारा जो रीडिंग है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे चौक चेकिंग करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन चेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे चौक इलेक्ट्रिकल आयरन। हम यहाँ पे एक फॉल्टी चौक भी लेने वाले हैं, ऑलरेडी हम इसका रेजिस्टेंस हम चेक करने वाले हैं और यहाँ इसका रीडिंग हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये सिर्फ हमारे टेस्टिंग के लिए हमने इसे रखा है, ओके। ये ओके कंडीशन का है और ये फॉल्टी कंडीशन का है चौक, और अनदर वन चौक इज ऑल्सो फॉल्टी कंडीशंस,
and this is electrical iron which is in healthy condition. Okay, now we check the all these equipments. We start the switch. नॉर्मल देखो हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम जब इसे शॉर्ट करते हैं तब क्या होगा, लैम्प का ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज फुल वोल्टेज इज अपेयर्ड अक्रॉस दिस लैम्प। ओके, नेक्स्ट वे कनेक्ट दिस सीरीज टेस्ट लैम्प टू दिस ओके कंडीशन इक्विपमेंट। दिस चोक हमने चेक कर दिया, देखा आपने ब्राइटनेस अभी डीम लैंप लग गया है, ब्राइटनेस कम हो गया। इसका मतलब क्या है, चोक अभी वर्किंग कंडीशन में है, गुड वर्किंग कंडीशन पर है, इसलिए लैंप का ब्राइटनेस कम हो गया। अगर हम इसे यहाँ इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा क्योंकि ये अभी फॉल्टी कंडीशन का चोक है, इसलिए इसका ओपन सर्किटेड चोक है, इसलिए वो लैंप नहीं लग रहा। मतलब जो थर्ड कंडीशन हमने देखी है सीरीज टेस्ट लैंप के। ये देखो यहाँ पे तीसरी कंडीशन, पहले हमने देखा लैम्प का ब्राइटनेस डिम था, मतलब ये जो चोक है ये गुड वर्किंग कंडीशन में था। बाद में क्या देखा हमने, ओपन सर्किट देखा। ओपन सर्किट में क्या हो गया, लैम्प ब्राइटनेस हमें नहीं दिखा, मतलब नॉट ग्लो द लैम्प। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, ये अभी ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड चोक है, इसका हम टेस्टिंग करेंगे। अब देखो इसका ब्राइटनेस, ये देखो फुली ब्राइटनेस से ग्लो हो रहा है, मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट है कुछ तो है इस चोक में। यहाँ पे देखो इसका ब्राइटनेस कम है, मतलब ये गुड वर्किंग कंडीशन में। ठीक है, अभी हम इसका शॉर्ट सर्किट का रेटिंग लेंगे। हमारा रीडिंग क्या हो जाएगा, पहले के लिए हम इसको फॉल्टी ऑब्जर्वेशन में इसका रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो लैम्प ब्राइटनेस इज ब्राइट, रिमार्क इक्विपमेंट इज शॉर्ट सर्किटेड। ओके, नेक्स्ट वी चेक करेंगे इलेक्ट्रिकल आयर्न। अब इलेक्ट्रिकल आयर्न को देखो, ये देखो इसका ब्राइटनेस कम है, मतलब ये गुड वर्किंग कंडीशन पर है। ओके, अभी ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो गया क्योंकि मैंने इसे ऐसा शॉर्ट कर दिया है, और जब इसे इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये डिम लग जाएगा, मतलब it is this equipment is in good working condition. So here we write down the lamp brightness is dim, the equipment is not faulty. Okay, by using the test lamp we are done this experiment. Now we test these all these equipment by using the multimeter. Okay, अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस चेक कर देंगे। अगर रेजिस्टेंस वेरी लो आ गया तो इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किटेड है, अगर रेटेड रेजिस्टेंस दिखाया तो गुड वर्किंग कंडीशन पर है, अगर रेजिस्टेंस वेरी हाई और वेरी इन्फिनिटी दिखाया तो क्या हो गया, ये सर्किट इज इन ओपन सर्किटेड। ओके, हम पहले हम गुड वर्किंग कंडीशन का इक्विपमेंट चेक कर देंगे, मतलब ये चोक को चेक कर देंगे। देखो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 68 ओहम, मतलब ये गुड वर्किंग कंडीशन पर है। अभी देखो हम इसका फॉल्टी कंडीशन का रेजिस्टेंस चेक कर देंगे। सी हियर, दिस इज ओपन सर्किटेड चोक, देयरफॉर इट डज नॉट शो द रीडिंग, दैट मीन्स इट शो द ओवरलोड और इन्फिनिटी रीडिंग। ओके, अब इसे देखो ये क्या शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 0 ओहम। ठीक है, और बीप भी दिखा रहा है, मतलब ये क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। अगर शॉर्ट सर्किटेड इक्विपमेंट होगा तो ये बीप दिखाएगा। ठीक है, ओके, तीनों टेस्ट समझ में आ गए। मतलब क्या है, ये शॉर्ट सर्किटेड चोक है इसलिए इसका रेजिस्टेंस 0 दिखा रहा है। ये ओपन सर्किटेड है, मतलब ये इन्फिनिटी रीडिंग दिखा रहा है, और ये ओके कंडीशन वाला है चोक, इसलिए क्या दिखा रहा है, प्रॉपर रेटेड रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सो दैट हमें किसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कौन सा टेस्टिंग करना है, ए इक्विपमेंट, और ए इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किटेड है। देयरफॉर हियर वी राइट डाउन द रेजिस्टेंस इज वेरी लो, approximately equal to 0 ohm, so that circuit is short circuited. Next we check the electrical iron. See here, this indicates the
90 ohm resistance. That means it is in good working condition. This electrical iron is good working condition. Here we will write down the medium. That means 90 ohm resistance. That means equipment is not faulty. ओके, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया. और एक बात आपको कहनी है, यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट लिखा था. जब यहाँ पे रेजिस्टर मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस अगर वेरी लो दिखाएगा तो हम सर्किट की कंटिन्यूटी भी एक बार चेक करना चाहते थे. अगर ये वायर है, इसकी वायर की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, ठीक है, तब जो ब्राइटनेस आएगा और जो रेजिस्टेंस दिखाएगा वो वेरी लो दिखाएगा. अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, मतलब सर्किट कंटिन्यूटली एग्जैक्टली प्रॉपर है, किसी पे कहाँ पे ओपन सर्किट नहीं है, हमें चेक करना है, तो इस एक क्राइटेरिया हमें उस पर लगाना पड़ेगा. सी 1 मिनट. ओके, ये देखो ये वायर है. अब ये वायर ओपन है या क्लोज, मतलब ओपन है या क्लोज सर्किट है, ये हमें देखना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कंटिन्यूटी टेस्ट लेंगे. कंटिन्यूटी टेस्ट में एक तो वेरी लो रेजिस्टेंस दिखाएगा या इन्फिनिटी, बिकॉज इन गुड वर्किंग कंडीशन रेजिस्टेंस इज वेरी लो. और कंटिन्यूटी टेस्ट, इस वायर की हमें कंटिन्यूटी देखनी है. सो बाय मल्टीमीटर मेथड हम इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे. अगर 0 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाएगा तो वो इसकी कंटिन्यूटी ओके कंडीशन पर रहे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे. क्लियर, इसका बीप भी बज रहा है और ये रीडिंग भी दिखा रहा है 0, मतलब इसकी कंटिन्यूटी ओके कंडीशन पर है. ठीक है, समझ में आएगा. अगर कंटिन्यूटी देखनी है आपको किस सर्किट की, तो रेजिस्टेंस वेरी लो दिखाएगा. इसलिए मैंने इस क्राइटेरिया में यहाँ पे लिखा है, अगर सर्किट का कंटिन्यूटी देखनी है तो इसका रेजिस्टेंस वेरी लो दिखाना चाहिए. सॉरी, ये नहीं, सर्किट की कंटिन्यूटी देखनी है तो सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी लो देखना पड़ेगा, तभी ये सर्किट ओके कंडीशन पर है. अगर ये वायर ओपन होता किधर में, तो क्या होता, इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई दिखाता. तो क्या होगा, इस वायर इज ओपन सर्किटेड. नाउ वी चेक दिस वायर बाय यूजिंग द टेस्ट लैम्प मेथड. टेस्ट लैम्प मेथड भी सेम क्राइटेरिया. इसका ब्राइटनेस क्या होगा, ब्राइटनेस फुली ब्राइटनेस से लैम्प ग्लो हो जाएगा, तब ये सर्किट कंटिन्यू रहे. ये देखो, ये फुल ब्राइटनेस दिखा रहा है, मतलब वायर की कंटिन्यूटी अच्छी है, मतलब गुड वर्किंग कंडीशन पर है वायर. अगर ये ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, ओपन सर्किट ऐसा दिखाएगा, मतलब लैम्प लो नहीं होगा, तब सर्किट ओपन सर्किट है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, देखा आपने कंटिन्यूटी टेस्ट. और लास्ट जो है वो अर्थ फॉल्ट टेस्ट है. ओके, अर्थ फॉल्ट टेस्ट कैसे लेते हैं, मतलब ये जो इक्विपमेंट है ये शॉक दे रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना होगा. ठीक है, अगर ये शॉक दे रहा है तो लैम्प का हमें क्या करना है, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट में इसका इंसुलेशन अच्छा है या नहीं है, ये हमें चेक करना है. इसलिए हम क्या करते हैं, एक वायर है वो बॉडी को लगाते हैं और एक वायर इज़ कनेक्टेड टू द इक्विपमेंट, देन उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं. ये देखो, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा वायर, ये क्या है, अभी ओके कंडीशन पर है, इसका इंसुलेशन अच्छा है, इसलिए बॉडी को टच नहीं दिखा रहा. अगर इंसुलेशन अच्छा नहीं होता, लैम्प ब्राइटनेस ऐसा दिखाता हमें. अगर इंसुलेशन अच्छा होगा तब बॉडी को एक कनेक्ट कर देंगे और एक कनेक्शन इस इलेक्ट्रिकल आयरन के टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे. अगर ये ओके कंडीशन पे दिखाता है, मतलब लैम्प लो नहीं होगा, तो ये ओके कंडीशन है. अगर लैम्प लो हो जाएगा तो ये अर्थ फॉल्ट दिखाएगा, ये इक्विपमेंट हमें शॉक देगा. ठीक है, ये हो गया अर्थ फॉल्ट चेकिंग. अर्थ फॉल्ट चेकिंग समझ में आ गया. अगर बॉडी और इक्विपमेंट के टर्मिनल में कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा तो इनका इंस्टॉलेशन अच्छा है, ये वर्किंग कंडीशन पर है. अगर ये ब्राइटनेस दिखाएगा ऐसा, तो क्या होगा, ये इसका इंसुलेशन ख़राब हो गया होगा, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं. ऐसा हमें एक्चुअली कंडीशन चाहिए. ठीक है, ये अर्थ फॉल्ट का टेस्टिंग हो गया है. सो आवर प्रैक्टिकल विल बी completed. You write down your result and interpretation of result as per your reading. Thank you.